Hello, my dear students. This is Shalli Gupta, and I welcome you all to my channel and to the series of AI for Class 11. This is part 3 of the chapter 1, that is Artificial Intelligence for Everyone. For part 1 and 2, you can go to my channel and check the videos. और आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये presentations आपकी एनसीईआरटी बुक को ध्यान में रख के बनाए गए हैं. So the topics we are going to cover in this video are cognitive computing, AI terminologies, types of machine learning, and benefits and the limitations of AI. Let's start with the cognitive computing first. Perception, learning, and reasoning. Cognitive computing is a branch of artificial intelligence that tries to work like the human brain. बच्चों, अभी तक हमने AI में देखा ऐसी मशीन्स जो कि सिर्फ एक सिंगल टास्क परफॉर्म कर रही थी, जैसे कि Alexa, okay, it was using just NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. यूट्यूब आपका डेटा ले रहा था और उसके बेसिस पे आपको सजेशंस देता था कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं है. But in the cognitive computing, okay, it is also a branch of AI. इसमें हम ऐसी मशीन्स पे काम करते हैं जो कि ह्यूमंस की तरह काम कर सकती हैं, जो कि ह्यूमन की तरह काम करने की कोशिश करती हैं. कैसे हम समझते हैं, कैसे हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, इन सिंपल लैंग्वेज कंप्यूटर जो कि हम अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. Okay, they are going to understand what the people say and write, learn from experience, think and reason to solve problem, talk and interact with the humans in a natural way. It's like teaching a computer to be a good listener, smart thinker and a helpful partner. So it can support us in making decisions, answering questions or even having conversations. अब कॉग्निटिव कंप्यूटिंग में हम क्या कर रहे हैं, तीनों चीजों को मिला रहे हैं. दैट इज योर डेटा साइंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड द कंप्यूटर विजन. जब हम तीनों को मिक्स करके एक मशीन बनाते हैं, देन वी विल से दैट इट इज कॉग्निटिव कंप्यूटिंग. By combining these technologies, cognitive computing enable machines to process and interpret diverse types of data. जैसे हमारा human brain क्या करता है, we have a lot of data, we can cook, we can solve the maths problem, we can write the essay. We are doing multiple tasks, right? In the same way here, the machine is going to do a multiple tasks, communicate effectively in natural language and perceive and understand visual information, thereby extending the capabilities of traditional AI system. जो पुराना AI system था, उससे बहुत ज़्यादा चीजें ये आपके लिए करके देगा. Create intelligent system that can understand with humans in human like manner, जो आपको humans को human की तरह ही बात कर सके और काम कर सकेगा. Okay, now see few examples of cognitive computing. One is your IBM Watson. It is one of the IBM most famous artificial intelligence system. ये IBM ने दिया था और इसका नाम जो IBM के फाउंडर हैं थॉमसन जे वॉटसन, इनके नाम पे रखा गया था. और ये कब आया था? It was there in 2011. IBM Watson हम लोग काफी जगह यूज कर सकते हैं. ओके, इट कैन हेल्प यू इन हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड एजुकेशन फील्ड. ओके, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज इट इज देयर इन वन हॉस्पिटल. ठीक है, ये किसी एक हॉस्पिटल में है. तो सपोज कोई पेशेंट आता है, तो सिस्टम क्या करेगा, आप उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री पूछेगा. ओके, उसके सिम्टम्स को चेक करेगा एंड ओवरऑल सारी चीजें चेक करके, मेडिकल डेटा सारा चेक करके, इट कैन help the doctor to give the right treatment. Okay, so it is a cognitive computing example. Another one is your deep mind. Okay, ये क्या है, गूगल के थ्रू दिया गया है and it is actually it's a modern AI lab. Deep mind is nothing, it's just a modern AI lab जो humans की तरह सोचने और सीखने वाली machines को बनाने की कोशिश कर रहा है. ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. जैसे डीप माइंड ने बनाया है अभी आज का हमारा बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है, दैट इज योर जेमिनाई. ओके, इट कैन हैंडल द मल्टीपल डेटा. इट कैन हेल्प यू इन राइटिंग ब्लॉग्स, ईमेल, स्क्रिप्ट. आपकी कोडिंग में हेल्प कर सकता है, डिबग कर सकता है. ओके, इमेज जनरेट करके दे सकता है, एडिट कर सकता है इमेज को, आपके एजुकेशन में हेल्प कर सकता है. सो इट इज एबल टू प्रोसेस मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा.
ओके, ऐसे ही एक बहुत पहले एक गेम आया था अल्फा गो, जो कि इस डीप माइंड ने बनाया था। ओके, उसमें क्या था, एक चाइनीज गेम हुआ करता था, बोर्ड गेम गो करके। उसके लिए वो बनाया गया था। उस अल्फा गो मशीन ने उस गेम को इतने अच्छे से सीख लिया था कि उसने जो वर्ल्ड चैंपियन था इस गेम में, उसको भी हरा दिया था। सो यू कैन सी द पावर ऑफ एआई। ओके, सो दिस इज अ डीप माइंड। Now let's talk about the AI terminologies. So AI को समझने के लिए आपको क्या-क्या की टर्म्स आपको पता होने चाहिए. Let's see that. AI terminologies. This diagram shows the relationship between three major areas of the field of artificial intelligence. Okay, you can see this artificial intelligence, outermost circle. Then we have machine learning और उसके अंदर है हमारा deep learning. So let's start with the artificial intelligence. The outermost circle, artificial intelligent machines don't think. Okay, ये सोचती नहीं है, they calculate. Okay, they use math and logic to solve problems. जैसे हमारे पास कोई डेटा होता है, ठीक है, जैसे हमारे सपोज यू आर इन अ बिजनेस एंड यू आर हैविंग दी डेटा लाइक सेलिंग प्राइस है आपके पास, कॉस्ट प्राइस है किसी चीज की, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस आपको करना है कैलकुलेट। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे और उसके बेसिस पे आप अपना आंसर दोगे। ओके, तो सेम क्या है, एआई मशीन क्या कर रही है, इट इज गोइंग टू यूज द मैथ एंड लॉजिक टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। दे आर सम ऑफ द मोस्ट एडवांस कंप्यूटर्स एवर मेड, कि ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो बहुत ज्यादा एडवांस हैं, और ऐसे टास्क, दीज मशीन्स कैन डू जॉब्स दैट यूजुअली नीड ह्यूमन इंटेलिजेंस, और जैसे ऐसे टास्क ये कर सकते हैं जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, जैसे अंडरस्टैंडिंग स्पीच, क्योंकि किसी इमेज को समझना, कोई डिसीजन लेना विदाउट नीडिंग अ पर्सन टू हेल्प, बिना किसी पर्सन के हेल्प के। जैसे आपके पास एलेक्सा है, ओके, आपने एलेक्सा से पूछा व्हाट्स द वेदर टुडे, ओके, तो उसने क्या आपको आंसर दिया, दैट्स एन एआई इन एक्शन। तो वो क्या है, एआई है जो काम कर रहा है, कि वो यहाँ इधर उधर से डाटा कलेक्ट करके आपको आंसर देती है। आगे चल के आपको तीनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, व्हाट इज एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। ओके, नेक्स्ट गो टू मशीन लर्निंग। ओके, द मिडल सर्कल, मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ एआई। मशीन लर्निंग क्या है, पार्ट ऑफ एआई है, एआई का पार्ट है। मशीन लर्निंग फोकसेस ऑन सिस्टम दैट कैन लर्न फ्रॉम डेटा। अब आपने देखा लर्निंग वर्ड आ गया, दैट मीन्स यहाँ से मशीन लर्निंग में क्या करेगी, जो मशीन है आपकी वो खुद से डेटा को समझना चालू कर देगी। मशीन लर्निंग फोकसेस ऑन सिस्टम दैट कैन लर्न फ्रॉम डेटा, ओके, जो डेटा से एंड इम्प्रूव ओवर द टाइम विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। आपको बाहर से कोई भी प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन क्या करेगी, डेटा के हेल्प के साथ खुद ब खुद वो सीखती जाएगी। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग फिक्स्ड रूल्स, एमएल मॉडल्स फाइंड पैटर्न्स, मेक प्रेडिक्शंस एंड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। एआई में क्या हो रहा था, हमारे रूल्स फिक्स थे, ठीक है, फॉर्मूलाज एंड लॉजिक्स के बेसिस पे वो कैलकुलेट करके आंसर दे रहा था, बट यहाँ से क्या करेगी, मशीन लर्न करना चालू कर देगी। जैसे आपके पास ईमेल्स रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ ईमेल्स जो ऐसे होते हैं वो अपने आप ही स्पैम फोल्डर्स में चले जाते हैं। तो उसमें क्या करा है, जैसे सपोज विनिंग अमाउंट का आपके पास कोई ईमेल आया, सो वी नो दैट इट इज अ फ्रॉड मेल, किसी ने उसको ब्लॉक करा। ओके, देन द मशीन को पता चल जाएगा, अच्छा ये वाला जो डेटा जिसमें विनिंग अमाउंट आता है वो क्या है, इट्स अ फ्रॉड, सो आई हैव टू सेंड इट टू द स्पैम मेल। ऐसे लोगों ने मल्टीपल ईमेल्स ब्लॉक करना चालू किए, तो धीरे धीरे उसको डेटा मिलता गया, अच्छा ये चीजें दे आर नॉट गुड मेल्स, ओके, दे आर फ्रॉड मेल्स, सो आई हैव टू सेंड देम टू जंक फोल्डर। तो धीरे धीरे मशीन ने उसको ऐसे सीख लिया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डीप लर्निंग की। ओके, इट इज द इनर मोस्ट वन, दिस इज द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। ओके, ये मशीन लर्निंग का पार्ट है। ऑल डीप लर्निंग इज मशीन लर्निंग, सारे डीप लर्निंग जो मशीन्स हैं वो मशीन लर्निंग में आएंगी, बट सारी मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में नहीं आएंगी। ओके, इन द सेम वे सारी जो डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग वाली मशीन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आएंगी। पर सारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन, इट्स नॉट नेसेसरी दैट दे आर इनटू मशीन लर्निंग एंड दे आर इनटू डीप लर्निंग। ओके, all deep learning is machine learning and all machine learning is the part of
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये क्या करता है, इट ट्राइज टू कॉपी हाउ द ह्यूमन ब्रेन वर्क्स यूजिंग समथिंग कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क। ये आपने बायोलॉजी में अपना टर्म पढ़ा होगा, इंस्पायर्ड बाय द न्यूरॉन्स। इन द ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, ओके, जिससे हमारी ब्रेन सोचता है और डाटा प्रोसेस करता है। तो उसी बेसिस पे ये डीप लर्निंग बनाया गया है। इट डू दी मल्टीपल लेवल ऑफ कैलकुलेशन, ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस कर सकता है ऑटोमेटिकली। इसका एग्जांपल्स क्या है डीप लर्निंग का, सेल्फ ड्राइविंग कार, ओके, फेशियल रिकॉग्नाइजेशंस। सेल्फ ड्राइविंग कार में क्या होता है, कार ऑटोमेटिकली चलती है, पर उससे पहले उसको ट्रेन किया जाता है। ऑफ कोर्स आप डायरेक्ट कार को ऐसे मार्केट में नहीं निकाल दोगे, है ना, आप उसको सबसे पहले ट्रेन करोगे, तो वो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट्स को पहचानना चालू कर देता है। उसको पता चल जाता है, अच्छा दिस इज एन ऑब्जेक्ट, अगर मैं इससे टकराता हूँ देन देयर कैन बी सम हार्म। ऐसी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन फीचर में वो आपके फेशियल फीचर्स ऑटोमेटिकली आप उसको शो करते हो, और वो ऑटोमेटिकली आपके फेस के पूरे पैटर्न को पढ़ लेता है। या ना, हमने इसमें बात की थी फोन अनलॉकिंग सिस्टम की। तो दैट इज योर डीप लर्निंग। बात करते हैं व्हाट आर न्यूरल नेटवर्क्स। Neural networks are like webs of tiny decision maker, okay, called nodes। तो ये क्या है, ये आपके nodes हैं जो ये दिख रहे हैं आपको सर्कल, ठीक है। You can see that it is a dense diagram। Okay, they are inspired by how brain cells, neurons connect and pass signals। Okay, let's talk about the structure. Input layer, okay, takes in data like an image or sentence। सपोज यू कैन टेक एन एग्जांपल, जैसे हमने किसी कैट की पिक्चर दिखाई, ओके, द इमेज गोज इज हेयर। तो इमेज क्या होगा, इनपुट लेयर में जाएगा सबसे पहले। उसके बाद है हमारे हिडन लेयर्स, प्रोसेस द डेटा इन स्टेप्स। अब हिडन लेयर में क्या होगा, ये लेयर क्या कर रहे हैं, दीज लेयर्स डू दी थिंकिंग, ये सोचने का काम करेगा। दे लुक एट द इमेज इन स्टेप्स, ठीक है, इमेज को वो देखेगा, उसके शेप, उसका शेप देखेगा, ओके, फेस का शेप कैसा है, कलर क्या है, पैटर्न क्या है, और उसके बाद पर जो आउटपुट लेयर है ये आपका फाइनल रिजल्ट देगा। ओके, दिस इज अ कैट और डॉग जिसकी भी आपने इमेज दिखाई होगी। So how do the nodes work? Each node check if the data it receives is strong enough. If yes, it passes it on. If not, it stays quiet. अगर वो पहचान लेता है कि अच्छा ठीक है, कलर है, ये इसका कलर, फर चेक किया उसने, शेप चेक किया, पैटर्न चेक किया, अगर उसको स्ट्रॉन्ग लगता है तो अगले लेयर में पास करेगा या फिर वो नहीं करेगा। हम बात करते हैं व्हाट इज डीप न्यूरल नेटवर्क। इफ द नेटवर्क हैज मोर देन 3 लेयर्स, इनपुट हिडन प्लस आउटपुट, इट इज कॉल्ड डीप लर्निंग। मतलब आपके पास मोर हिडन लेयर्स, जितने ज्यादा हिडन लेयर्स होंगे इट विल कम अंडर डीप न्यूरल नेटवर्क। मोर लेयर्स मींस इट कैन लर्न मोर कॉम्प्लेक्स थिंग्स। जितने ज्यादा लेयर्स होंगे उतने ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स थिंग्स को याद कर सकता है। ठीक है, जैसे आपने एग्जांपल लिया था कैट का कि उसके ईयर्स कैसे हैं वो उसको देख सकता है, ठीक है, उसका पैटर्न, उसके फेस के पैटर्न को याद रख सकता है, उसके फर को याद रख सकता है। तो वो जितने ज्यादा फीचर्स याद रख सकेगा, आपका जो मॉडल है, जो आपका मशीन है, वो उतना अच्छा काम करेगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल जैसे हमारा एलेक्सा। एलेक्सा इज आल्सो यूजिंग डीप लर्निंग टू अंडरस्टैंड योर स्पोकन लैंग्वेज एंड रिस्पॉन्ड नेचुरली। ठीक है, ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स योर स्पीक टू टेक्स्ट एंड लर्न फ्रॉम योर वॉइस ओवर टाइम। धीरे धीरे वो आपकी वॉइस से लर्न करता रहता है। जैसे आपने देखा होगा, आप हिंदी में बोलते हो तो वो हिंदी में आंसर देता है, इंग्लिश में बोलते हो तो इंग्लिश में आंसर देता है। तो योर एलेक्सा इज ऑल्सो यूजिंग दी डीप न्यूरल नेटवर्क। Now let's see what is the difference between machine learning and the deep learning. मशीन लर्निंग में क्या था, स्मॉल डेटा सेट, एमएल कैन लर्न फ्रॉम फ्यूर एग्जांपल्स, थोड़े से एग्जांपल से ही ये याद रख सकता है। बट डीप लर्निंग में बहुत अच्छे से उसको लर्न कराने के लिए इट नीड्स अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स टू लर्न वेल। देन इट इज लो एंड मशीन, डज नॉट नीड फैंसी हार्डवेयर। इस मशीन में आपको आपका नॉर्मल जो मशीन होती है, नॉर्मल उसमें जो चीजें कनेक्टेड होती हैं, नॉर्मल जैसे आपका लैपटॉप है, वी कैन यूज दैट फॉर मशीन लर्निंग। बट जो आपका डीप लर्निंग होता है उसमें आपकी
it needs powerful computer, okay, like GPUs, okay, that is your graphical processing unit, विजन के लिए, जिससे वो पैटर्न और सारी चीजों को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सके, तो उसमें आपका महंगा सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। देन ब्रेक बिग प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ये जितने जो भी ब्रेक प्रॉब्लम्स होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करके देन इट गिव्स यू द आंसर। बट ये क्या करता है, डीप लर्निंग एक बार वो सीख जाता है तो आपकी प्रॉब्लम को फट से सॉल्व कर देता है। फास्ट ट्रेनिंग, इट लर्न्स क्विकली, इसमें टाइम लगता है स्लो ट्रेनिंग, क्योंकि वो धीरे धीरे चीजों को सीखता है, टेक्स टाइम टू लर्न। स्लोअर टेस्टिंग मे टेक लॉन्गर टू मेक प्रेडिक्शंस वंस ट्रेन्ड, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको आंसर देने में, बट मेक क्विक प्रेडिक्शंस वंस रेडी। बट ये एक बार डीप लर्निंग में अगर वो एक बार सीख जाता है देन इट कैन हेल्प यू आउट वेरी क्विकली। ओके, नाउ टेक एन एग्जांपल। अब आपको यहाँ पे what is the difference between AI, machine learning and deep learning? Now it will be very clear to you with the help of this example. Okay, suppose you are given the job to sort the fruits at a grocery store. You realize that there are dozens of products. ठीक है, आपने देखा कि बहुत सारे fruits हैं और आपको उनको segregate करना है। So how will you use artificial intelligence को, आप कैसे use करोगे उसके लिए, machine learning को कैसे use करोगे और deep learning को कैसे use करोगे फॉर हेल्पिंग दिस वर्क। ठीक है, तो आपने क्या किया, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और बनाना, आपके पास 3 लेबल्स हैं और ये आपके पास फ्रूट्स हैं जिसपे ऑलरेडी लेबल लगा हुआ है। ठीक है, बनाना पे, एप्पल पे, स्ट्रॉबेरी पे, और आपको इनको सेग्रीगेट करना है। तो फ्रूट्स कैरेक्टराइज्ड बाय यूजिंग एल्गोरिथम, दैट जैसे मैंने आपको बोला था, इट यूजेस, एआई यूजेस मैथ एंड द लॉजिक। तो वो कैसे सेग्रीगेट करेगा, टू सॉर्ट द एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड बनाना यू कैन राइट अ सिंपल प्रोग्राम यूजिंग इफ एंड एल्स। मशीन चेक्स द लेबल एंड सेंड ईच फ्रूट टू द राइट बास्केट बेस्ड ऑन व्हाट इट सीज। ठीक है, आपने इफ एल्स पढ़ा होगा। इफ एल्स के सिंपल प्रोग्राम यूज करके हम इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, इसके लेबल को चेक करके, अच्छा इस एप्पल से एप्पल मैच हो रहा है तो एप्पल गया, स्ट्रॉबेरी, बनाना। सो दिस इज योर simple AI. It is not learning anything. It is just using the normal this program and it is segregating the fruits. अब हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग में क्या कर रहा है, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन यू गिव इट लॉट ऑफ डेटा showing different features of each fruit. ठीक है, like their size, shape and color. More data you provide for the algorithm, better the model gets. जितना ज्यादा आप डेटा प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा वो जल्दी काम करेगा। ठीक है, जैसे आपने इसको दिया, बट इसमें क्या है, इट इज ऑलरेडी हैविंग द लेबल, डेटा है आपका। ठीक है, इसमें बनाना मार्क है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो वो ये क्या करेगा, उसको रीड करेगा, शॉर्टेड यूजिंग एल्गोरिथम दैट आइडेंटिफाई फ्रूट्स बाय डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये एप्पल देख लेगा, अच्छा ये एप्पल को रीड कर लेगा, अच्छा इसका ऐसा कलर है, इसका ऐसा शेप है। इन द सेम वे इट विल सी, ओके दिस इज स्ट्रॉबेरी, इट इज हैविंग दिस टाइप ऑफ शेप एंड कलर। तो लेबल से और उसके फीचर्स से उसने उसको पहचाना एंड देन इट इज सेग्रीगेटिंग ऑल 3 ऑफ देम। दिस इज योर मशीन लर्निंग, जिसमें आपने लेबल भी दिया और आपने उसको फ्रूट का पिक्चर भी दिया है। तो वो क्या करेगा, नेम भी देखेगा और देखेगा अच्छा स्ट्रॉबेरी है और उसका पैटर्न भी पहचान लेगा और उसके बेसिस पे करेगा। नाउ नेक्स्ट कम योर डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में व्हाट वी आर डूइंग, डीप लर्निंग डोंट नीड ह्यूमंस टू टेल देम व्हाट टू लुक फॉर एन इमेज, कुछ नहीं बताना है डीप लर्निंग को। वी आर नॉट गिविंग द लेबल्स आल्सो एंड वी आर जस्ट गिविंग द डेटा। ये आपने उसको पूरा डेटा दे दिया, किसी पे भी ना एप्पल मार्क है, ना बनाना, ना स्ट्रॉबेरी, कुछ भी नहीं है। तो मशीन क्या करेगा, आपने उसको एप्पल दिखाया, इट इज गोइंग टू रीड ऑल द फीचर्स ऑफ इट। स्ट्रॉबेरी दिखाया, इट इज गोइंग टू लर्न ऑल द पैटर्न, द कलर ऑफ द फ्रूट। इन द सेम वे इट विल डू विद बनाना, और वो उसको ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट कर देगा, शॉर्टेड यूजिंग एल्गोरिथम दैट आइडेंटिफाइज फ्रूट फ्रॉम द वेराइटी ऑफ इमेजेस। इमेजेस से पहचान के वो उसको सेग्रीगेट कर देगा। सो डीप लर्निंग में कुछ भी हम उसको नहीं दे रहे, वी आर जस्ट गिविंग द डेटा। So that is the difference between AI, machine learning and the deep learning. Now we are going to talk about types of machine learning. So let's see how many types of machine learning are there. Okay, so one is your supervised machine learning. Okay, इसमें क्या देते हैं, we use the label data देंगे,
It is going to give the direct feedback and the outcome predictions. Okay, we will see them one by one. Use unsupervised, use no label data, give no feedback, find hidden structure. And the reinforcement learning, decision process, reward system, and learn the series of action. Now let's see one by one them in detail. तो सबसे बात करते हैं, सबसे पहले हम सुपरवाइज लर्निंग की. Okay, supervised learning is like teaching a child with the flashcard. ठीक है, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं फ्लैश कार्ड्स के थ्रू. जैसे कैट का इमेज है, कैट इस पे लिखा हुआ है. डॉग का इमेज है, वी हैव लेबल्ड इट एज डॉग. ठीक है, आउटपुट भी हम दे रहे हैं और उसका पिक्चर भी हम ही दे रहे हैं. In the supervised learning, you give the computer a bunch of input. Okay, like it can be picture, number, words. And you also tell if the correct answer for each one. ठीक है, आपने एक कैट का पिक्चर दिया, आपने उसको ये भी बताया है कि ये कैट है. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज इनपुट आउटपुट पेयर. डॉग का दिया, डॉग आपने बताया है उसको. काऊ का पिक्चर दिखाया, काऊ आपने बताया है कि वो है. In this example, we give the model picture of animals, okay, cat, dog, cow. The model studies these pairs and learn the pattern. Okay, this is known as training phase. इसमें क्या ट्रेनिंग फेज है, हम मशीन को सिखा रहे हैं. Now इन दी सुपरवाइज लर्निंग, नाउ अब हम क्या करेंगे, लेबल हमने हटा दिया, हमने उसको पूछा ये किस चीज का इमेज है. देन इट इज गोइंग टू टेल यू इट्स अ इमेज ऑफ अ कैट. दैट मींस इट्स अ करेक्ट आंसर. Okay, so this is your supervised learning where we are giving the input and the output pairs. Okay, now next is the example of supervised learning algorithm. Okay, now there are some algorithms. Supervised learning में आप कौन से algorithms use करोगे वो देख लेते हैं. One is your linear regression, predicting house prices based on size. Bigger the house, the higher the price. The model learns the straight line relationship. ठीक है, जैसे अपने लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम यूज किया, इसमें अपन हाउस के प्राइसेस चेक करें तो ऑब्वियसली जितना बड़ा हाउस होगा उसका प्राइस उतना ज्यादा होगा. Another algorithm you are going to use is logistic regression, predicting if an email is spam or not. Okay, कैसे आप प्रेडिक्ट करोगे, उसकी लाइन देखकर, जैसे विनर. Okay, you are earning if you are going to click this link you are going to earn that this much money. Sender keywords के थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि स्पैम है या नॉट स्पैम है. Then decision tree, deciding what to wear based on weather. ठीक है, if it's raining wear a raincoat, that means we are taking the decisions. If it's sunny wear sunglasses. Then we have support vector machines. Example, sorting fruits by shape or the color. The model draws a boundary between apple and oranges based on features like roundness and color. तो उसके features को पहचान कर उसको segregate करना. This will come under support vector machine algorithm. Next is neural network, recognizing faces in photos. Okay, the model learns complex patterns जैसे eyes, nose and mouth to identify people. Okay, next come to unsupervised learning. Unsupervised learning में क्या कर रहे हैं, we are just giving the unlabeled data. Okay, the unsupervised learning is a type of machine learning where the model learns from the unlabeled data, which means that the input data is not accompanied by the correct output. Okay, इस पे हमने आउटपुट उसको कुछ नहीं दिया है कि क्या चीज है. Okay, the computer does know what the correct answer is. Doesn't know, sorry, correct answer, but it tries to figure things out on its own. तो वो कंप्यूटर अपने आप ही उसको पैटर्न को देख के चीजों को पहचानना चालू करेगा. जैसे उसने क्या किया, अनलेबल्ड डाटा में जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर की चीजें उसने सेग्रीगेट कर दी. देन इट हैज सेग्रीगेटेड अकॉर्डिंग टू दी, उसने क्या चीज अलग कर दी, जैसे ट्रायंगल है तो उसने ट्रायंगल को एक ग्रुप में डाल दिया. सो इट ग्रुप थिंग्स him these pieces look similar, maybe they belong together, so it group things, find patterns or short structures, spot structures without anyone telling it what right and wrong. Computer looks at everything and tries to figure out
how the things are related. Okay, it might group similar things together called clusters. Notice which things often appear together called association. Spot things that look very different or unusual called anomalies. Okay, तो उसने ग्रुप कर लिया, देखो सेम कलर है तो उसने एक साथ कर दिया, इफ दे आर हैविंग द सेम शेप तो उसने उसको एक साथ कर दिया. Now let's see the example of supervised learning algorithm. Okay, इसमें पहला कौन सा algorithm है? K means clustering, grouping customers in the shopping mall. ठीक है, the algorithm looks at things like age, spending habits, and creators group like teen shoppers, budget buyers, and premium customers. जैसे अपन क्या, जैसे हम लोग मॉल जाते हैं तो टीनेजर्स को क्या पसंद आएगा, ओके पहले उन्होंने एज वाइज उसको सेग्रीगेट कर दिया, तो उनकी हैबिट्स को कि टीन को क्या पसंद आएगा, देन आपके एडल्ट्स को क्या पसंद आएगा, तो उस बेसिस पे आपने कस्टमर्स को ग्रुप कर दिया इन शॉपिंग मॉल में. Then it is hierarchical clustering. I have made a mistake. It is unsupervised learning. Okay. Organizing books in library. जैसे अपन बुक्स ऑर्गेनाइज करते हैं लाइब्रेरी में, ओके फिक्शन बुक्स आपने अलग कर दी, रोमांटिक बुक्स अलग, मिस्ट्री बुक्स अलग. इट बिल्ड्स अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर. Next is auto encoders, removing noise from photos. Okay, you give the model blurry or noisy images and it learns to recreate clean versions by understanding the code structure without needing label diagram. जैसे आप यूज करते हो राइट, ऑनलाइन हमारे पास काफी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहते हैं जिसमें हम लोग वी वांट टू क्लियर द इमेजेस, तो पीछे का जो बैकग्राउंड होता है अगर उसमें कुछ भी चीज होती है तो वो उसको क्लियर करके दे देता है ऑटोमेटिकली. So which algorithm it is using? Auto encoders. Then we have principal component analysis, simplifying student performance data. If you have a lot of features like test scores, attendance, project grades, okay, so PCA find the most important patterns and reduces the data of just a few key numbers like a summary score. तो जिसके टेस्ट स्कोर्स अच्छे हैं, किसका मैक्सिमम अटेंडेंस है, उस बेसिस पे इट इज गोइंग टू सिंप्लीफाई द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस डेटा. Okay, next is your reinforcement learning. Okay, reinforcement learning में क्या होता है कि we are learning, the machine is going to learn from its action. Okay, जैसे एक child है, okay, it is playing the ball. If the kick is good, then they get praise, right? Or a goal. And slowly, with the help of the feedback, the child is going to improve on its own. So same way it's happening in the reinforcement learning. It is like learning from the mistakes. जैसे आपका ये रोबोट है, now the robot has to go and collect the watch. Reinforcement learning is a way for a computer to learn by trying things out and getting feedback. It learns how to make good decisions by interacting with its surroundings, call the environment, and aiming to earn rewards. Okay, now it has to go to collect the, so it is like learn through trial and error. The agent doesn't know the right answer at first. It takes an action, sees what happens and gets reward or a penalty. जैसे वो यहाँ पे walk करेगा, तो obviously the robot is going to get the penalty. अब agent यहाँ जाएगा, again the penalty. अगर वो यहाँ पे गया, again the penalty. So with the help of this, it is going to learn, okay, if I will go here, if I will go here, I will get the penalty. And if it will go to the right direction, it will get the reward. So goal, learn a smart strategy. The agent goal is to figure out the strategy that helps it make the best choices. Okay, it wants to earn the most rewards over time. Not just one good move, but a
सीरीज ऑफ स्मार्ट मूव्स दैट लीड्स टू सक्सेस। ओके, इसका सबसे एक एग्जांपल लाइक आप लोग ने कभी गेम खेला होगा, हम लोग मारियो खेलते हैं या फिर कोई और गेम खेलते हैं, तो हमें पहले जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमें पता नहीं होता ओके यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल आने वाला है, एंड देन आफ्टर प्लेइंग 1 or 2 टाइम्स वी नो, तो हम क्या करते हैं पहले से ही we take the correct action and we are able to win the game. So same it is happening here in the reinforcement learning. It is going to learn by its own action. It works best when the decisions happen one after another. Okay, like playing a video game, teaching a robot to walk or pick things up, managing money, stocks over time. So it's just like going with the action and getting reward and the penalty. Reinforcement learning, you can say the self-learning. Okay, now let's see the algorithms. First is Q learning, the basic method where an agent learns what to do by trying things out and keeping score. ठीक है, आप देख चुके हैं एजेंट लर्न, वो ट्राई करेगा और अपने स्कोर्स को भी साथ में सेव करके रखेगा. Next is your deep Q networks, Q learning, but with a brain upgrade. It uses a neural network to handle complex situations. Policy gradient, a method where the agent directly learns how to behave rather than keeping a score. Okay, इसमें हम क्या कर रहे हैं? Training a model to get better at making decisions by making it in right directions. Actor critic method, a smart combo of two roles. One decide what to do, and the second one is critic is the judge how good it was. Okay, a smart combo of two roles, one decide what to do, that will be your actor, and the other judges how good it was, so it was critic. Now let's see the benefits and the limitations of AI. You all know we have a lot of benefits. Okay, increased efficiency and productivity. AI helps by doing boring and repetitive tasks automatically. ठीक है, repetitive task जैसे रोज का, सपोज वी आर हैविंग अ बिजनेस, ठीक है, रोज का आपको कितना सेल हुआ, कितना कितना आपका गेन हुआ, सो वी हैव टू मेक दैट एंट्री, but that entry we are doing it regularly, so AI can help you with this. Improve decision making. AI can look at huge amount of information and spot patterns and people might miss. Okay, so it can help doctors in making the good decisions, giving the right treatment, enhanced innovation and creativity. Okay, it can suggest you the ideas, it can help you in writing, progress in science and healthcare. AI helps scientists discover new medicines and doctors diagnose illness more accurately with the help of AI. Okay, now let's talk about the limitations of AI. Job displacement. Okay, some jobs may be replaced by AI. Okay, like we are saying that the repetitive work which is need to be done can be given to AI. So it can happen. So workers need to learn AI. Next is your ethical considerations. Okay, AI can be unfair or misused. We not need strong rules to keep it safe and fair. Sometimes it happens there is a spread of misinformation. ओके, कुछ कास्ट या फिर टेररिज्म के को लेके कुछ मिस इन्फॉर्मेशंस कई बार आ जाती है न्यूज में. ओके, सो इट इज कम अंडर इथिकल कंसिडरेशन. ओके, या फिर मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक का कुछ ओपिनियन है पर आपने उस पे वेबसाइट्स पे डाल डाल के आपने मे बी उसके चीजों को मैनिपुलेट कर दिया, चेंज कर दिया लोगों के डिसीजंस को, सो दैट विल कम अंडर इथिकल कंसिडरेशंस. Okay, lack of explainability. Sometimes AI system are so complex that even expert can't fully explain how they make decisions. कभी कभी ऐसे decisions AI दे देता है कि हमें नहीं पता होता कि AI ने ऐसा output क्यों दिया. So we should cross check that. Data privacy and security. AI needs a lot of data to learn, but collecting and storing that data can put people's private information at risk. कभी कभी जो हम डेटा देते हैं वो उसको सेव कर लेता है लर्न करने के लिए, तो दैट कैन बी रिस्की फॉर
us. So we should always give a limited data on the internet. Thank you for watching this video. If you like the video, do click on like button, share and subscribe my channel. Don't forget to click the bell icon to get notified about my upcoming videos.